یہ صفحہ خواتین کی روزمرہ خاندانی اور ذاتی مسائل کے لیے وقف ہے۔ خواتین اپنے روزمرہ کے مشاہدات اور تجربات ضرور تحریر کریں۔ نیز صاف صاف اور صفحے کے ایک طرف مکمل لکھیں، چاہے بے ربطہ ہی کیوں نہ ہو۔ دماغی کمزوری، خشکی اور گرتے بال، نزلہ زکام، دماغی کمزوری، خشکی، بال سفید ہونا اور گرنے کا مسئلہ۔ مشورہ: بال شخصیت کو پرکشش بناتے ہیں، ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو کمزوری، رکھے بے جان ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، سکری ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ بالوں کو زیادہ کس کر نہ باندھیں، زیادہ ڈرائر نہ کریں، ہفتے میں 2 بار تیل ضرور لگائیں۔ آملہ کا معیاری تیل بھی بازار میں مل جاتا ہے۔ آملہ بالوں کو مضبوط اور سیاہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح دہی خشکی کو ختم کر دیتا ہے۔ تیل اور دہی ملا کر لگایا جائے تو بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ آملہ کے سفوف سے سر دھویا جائے اور آملہ کا تیل لگایا جائے تو بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ میتھی دانہ، جسے ہم پنجاب میں میتھرے کہتے ہیں، 1 پاؤ پسوا کر رکھ لیں، 2 چمچ سفوف پانی میں بھگو دیں۔ نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بالوں کی جڑوں میں لگائیں، بعد میں سر دھو لیں۔ سر دھو کر 3-4 قطرے زیتون کے تیل کے 2 قطرے لیموں کے رس کے ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، خشکی بھی ختم ہو جائے گی، چمک بھی آ جائے گی۔ اسی طرح آملہ ہڑیڑ بہیڑ پیس کر آدھے چمچہ لیموں کے رس ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے بالوں میں لگایا جائے تو بال مضبوط سیاہ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ غذا کا استعمال کا خاص خیال رکھا جائے۔ بڑا ہوا پیٹ بڑھ رہا ہے، ورزش بھی کرتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو تلی ہوئی، چکنی اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، ماں سوائے شہد کے، کیونکہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جب وزن کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سب سے آخر میں پیٹ کی چربی تحلیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے لیموں پانی بہت زیادہ مفید ہے۔ ورزش روز کرنی ہے۔ ایک ٹوٹکا ہے جو مغربی تحقیق کے مطابق موٹاپا کم کرنے میں بہت مفید ہے۔ بازار سے آدھا پاؤ دار چینی لا کر پیس کر رکھ لیں۔ صبح نہار منہ آپ تقریباً 1 بڑے کپ پانی میں 1/4 چائے کا چمچ سے بھی کم مقدار دار چینی اور 1 بڑا چمچ شہد ڈال کر ابال لیں۔ ناشتے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ نیم گرم قہوہ پئیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی۔ بھوک نہیں لگتی۔ 12 گھنٹے بچوں کو اسکول میں پڑھاتی ہوں، مجھے بھوک بالکل بھی نہیں لگتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن کچھ نہیں کھاتی، صرف پانی پر گزارا کرتی ہوں کیونکہ بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں، باربیکیو مجھے بہت پسند ہے، اکثر کھانے میں وہی پسند کرتی ہوں اور کولڈ ڈرنک پینا میرا معمول میں شامل ہے۔ مشورہ: بھوک نہ لگنے کی وجہ باربیکیو ہے۔ جب تک آپ ایسا چلے گا پھر معدہ بھی بالکل تباہ ہوتا جائے گا۔ باربیکیو کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھی پیتی ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ پی لیجیے تو اتنے خراب اثرات نہیں ہوتے جتنا آپ روزانہ کولڈ ڈرنک کے استعمال کرتی ہیں۔ آپ کولڈ ڈرنک میں ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر یا ٹوٹا ہوا دانت یا ہڈی ہو تو چند روز میں کولڈ ڈرنک میں تحلیل ہو جائے گا۔ آپ صبح کے وقت شہد پانی اور اس میں 1 لیموں کا رس نچوڑ کر روز پئیں۔ دوپہر کو کھانے سے پہلے 1-2 کینو پھانکیں، چھیل کر رکھیں۔ ہلکا سا نمک، کالی مرچ اور پیسی ہوئی سونٹھ چھڑک کر 1-1 پھانک کھائیں۔ 6 سے 7 کھانے سے آپ کو بھوک لگے گی، کھایا پیا ہضم ہوگا، معدہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہونے لگے گی۔ پلکیں گر رہی ہیں۔ میری عمر 25 سال ہے، 2 ماہ سے میری پلکیں گر رہی ہیں، چہرہ عجیب لگتا ہے، یہ مرض کیسے ٹھیک ہوگا؟ مشورہ: یقیناً آپ کے سر میں خشکی ہے جس کی وجہ سے پلکوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آپ پہلے خشکی کا علاج کیجیے۔ سر میں چقندر کا تیل لگائیں، پرانے دہی میں تیل ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد سر دھو لیجیے۔ بعد میں چند قطرے زیتون کے تیل میں چند قطرے لیموں کا رس ملائیں اور گیلے بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل، ارنڈ کا تیل انگلی پر لگائیں اور پلکوں کی جڑوں پر لگا کر مالش کیجیے، اس عمل سے بھی پلکیں مضبوط ہوں گی۔ ڈسٹ اور خوشبو سے الرجی ہے، کچھ بتائیے۔ ڈسٹ اور خوشبو سے الرجی ہے۔ مشورہ: انسانی جسم جب کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تو الرجی ہو جاتی ہے۔ پھولوں کی خوشبو سے، گرد مٹی سے جھاڑ دیتے ہیں سے چھینکیں آنے لگتی ہیں، کسی کو سانس کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ آپ جب جھاڑ دینے لگیں تو تھوڑی سی چینی منہ میں رکھ لیا کریں، ناک میں رات کو زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ اناب کا شربت استعمال کیا جائے، اناب بھی حساسیت کو دور کرتا ہے۔ میتھی دانہ کا قہوہ پینے سے بھی فرق محسوس کریں گی۔ سینے میں جلن: میری عمر 28 سال ہے اور میرے سینے میں اکثر جلن رہتی ہے، خاص کر رات میں گھبرا کر آنکھ کھل جاتی ہے تو صبح خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مشورہ: سینے کی جلن کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کھانے کے بعد ورزش، بھاگ دوڑ، وزن اٹھانے سے بھی مسئلہ جنم لیتا ہے۔ آپ رات دیر سے کھانا کھاتی ہوں گی، چٹپٹا مرغن کھانا کھاتی ہوں گی، کھٹی ڈکاریں آتی ہوں گی اور رات کو منہ میں جلن ہونے لگتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سادہ کھانا کھائیں، کھانے کے بعد چند منٹ ٹہلیں، الائچی، سونف آہستہ آہستہ چبانے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ سرد پانی سے بھی جلن کم کر سکتی ہیں، آدھی پیالی سادہ دہی غذا میں شامل کرنے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔
شفایہ داغے نے واقعی شفا دلا دی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، میرے کندھے میں اکثر درد رہنا شروع ہوا تھا اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت یہ آ گیا کہ 1 کلو وزن بھی میں اس بازو سے نہ اٹھا سکتا تھا۔ مہنگی سے مہنگی پین کلر گولیاں کھا لی مگر صرف وقتی آرام آتا۔ کندھے میں ٹیکے لگواتا تو پھر رات کو سو پاتا۔ تسبیح خانہ میں معلوم ہوا کہ یہاں آنا شروع ہوا۔ یہاں سے حجویری محل لاہور شاہپورہ روڈ پر سٹاپ قلعہ استار شاہ کا معلوم ہوا۔ وہاں جا کر آستانہ منت مراد میں گیا، وہاں اعمال کیے اور واپسی پر وہاں سے شفایہ دھاگا ملا جو میں نے اپنے بازو پر باندھ لیا۔ جیسے ہی دھاگا باندھا ایک سکون سا ملا، پھر یہ سکون بڑھتا چلا گیا اور چند ہفتوں کے اندر اندر میرا بازو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مغل بادشاہ بابر کی طاقت و عقل کا راز آخر گاجر نکلی۔ گاجر ایک قسم کی ترکاری ہے جسے کاشت کیا جاتا ہے۔ ذائقہ میٹھا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں گاجر کا استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مورخین نباتات کا کہنا ہے کہ گاجر تقریباً 2000 سال سے بھی کئی زیادہ عرصہ سے کاشت ہوتی چلی آئی ہے۔ شہنشاہ بابر کے متعلق روایات ہیں کہ وہ تلی ہوئی گاجریں بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا۔ آئین اکبری میں جنگلی گاجروں کا بیان موجود ہے اور ان گاجروں کا تذکرہ بھی ہے جو بوئی جاتی ہیں اور اس میں ایک جزء کیروٹین بھی بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ افعال خواص کے اعتبار سے پیشاب اور حیض کا دارا کرتی ہے، معدے اور دل کو طاقت دیتی ہے، بلغم دور کرتی ہے۔ اختنان الحرم کے مریضہ بے دھڑک کھا سکتے ہیں اور معدے کے جو خصوصی فائدہ ہوتا ہے وہ ان کا سریا خصوصیات ہیں، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ گاجر کو مختلف صورتوں سے کھایا جاتا ہے۔ حلوہ بنا کر، مربے کی صورت میں، کچی حالت میں، اس کا کیل نکال کر وغیرہ، کیونکہ یہ جسم کی پرورش کرتی ہے، سالہ خون پیدا کرتی ہے اور ان کے خاص وصف ہے۔ اور بعض اتباع کرام کے تجربے میں آ چکی ہے کہ گاجر کھانے سے مسوڑھوں کے عارضے گوشت خورا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ یوں بھی گاجر بینائی کو تیز کرتی ہے اور نظر کو کئی تکلیفوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ گاجریں استعمال کی جائیں تو قبض نہیں ہوتی۔ بواسیر اور سنگ رحمی کے مریضوں کو اس کا عرق بطور غذا اور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین رحم کی صفائی چاہیں تو یہ نسخہ آزمائیں۔ خواتین اگر رحم کی صفائی چاہیں تو گاجر کے ساتھ ماشا بیج صاف کر کے 2 کپ میں جوش دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس میں شکر سرخ حسب ذائقہ ملا کر پی لیں تو رحم فضول مواد سے پاک ہو جاتا ہے۔ گاجر کے مربا کے فوائد اور بنانے کا طریقہ۔ فی زمانہ میں کمزوری اور دل کی دھڑکن اور ضعیف میں کافی لوگ مبتلا ہیں۔ ان کے لیے اکثر شے گاجر کا مربا ہے جسے بوقت صبح چاندی کے ورق میں اصلی میں لپیٹ کر کھانا چاہیے۔ ترکیب: مربا: عمدہ گاجرہ لیں، اوپر کا چھلکا اور اندر کی سفید کیل نکال دیں، پھر انہیں چھوٹے چھوٹے قطعوں کی شکل میں ٹکڑے بنا لیں۔ اب ان ٹکڑوں کو شہد ملے پانی میں جوش دے کر 1-2 جوش دیں اور اتار کر برتن جو چینی کا مرتبان وغیرہ ہو اس میں رکھ لیں۔ اس مربے کو 40 دن بعد استعمال کریں۔ مقدار خوراک اس کی صبح شام 3 تولے سے 5 تولے تک کھانی ہے اور غم دل سے نجات پائیں۔ آپ کہیں اٹھیں گے کہ واقعی گاجر قدرت کی طرف سے انسان کے لیے نایاب تحفہ ہے۔ گردے مثانے کی پتھری نکالنے کا نسخہ: 1 حصہ گاجر کے بیج، 1 حصہ شلجم کے بیج لے کر دونوں کو مولی کھول کو اس میں بھر دیں اور منہ بند کر کے مولی کو بھوبل میں پکا لیں، پھر نکال کر کھائیں۔ اس سے گردے اور مثانے کی پتھری نکل جائے گی اور رکا ہوا پیشاب بھی کھل جائے گا۔ گاجر کھانے والا ہمیشہ کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ گاجر کے بارے میں مغربی ماہرین نے جو تازہ تحقیق کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ گاجر کھانے والا آدمی کینسر سے دور رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 گاجر روزانہ کھائی جائے تو پھیپھڑوں کا کینسر قریب نہیں آ سکتا۔ گاجر میں حیاتین الف کا بیش قیمت خزانہ موجود ہے جو کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ گاجر ہمارے ہاں کچی اور سلاد یا پکا کے طور پر سبزی کے طور پر کھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گاجر کا حلوہ، گاجر کی کھیر بھی ہم لوگ کھاتے ہیں اور گاجر کا مربا تو بہت عام چیز ہے، جبکہ گاجر کا اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ گاجر کا مربا دل و دماغ اور جگر کے لیے مقوی ہے۔ گاجر کا اچار ہاضمہ درست رکھتا ہے اور تلی کو کم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلی بڑھ جانے کی صورت میں گاجر کا اچار فائدہ دیتا ہے۔ گاجر تو ہم لوگ مختلف صورتوں میں کھاتے ہیں لیکن ان کے پتوں کو عام طور پر ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پتے بھی بہت مفید ہیں۔ ان میں پروٹین، چکنائی کے علاوہ معدنی نمک، نشاستہ دار اجزاء، فاسفورس اور چونا اچھی خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مفید بلکہ جسم کی ضرورت ہوتے ہیں۔ پتوں کے علاوہ گاجر کے بیج بھی بے شمار طبی فوائد رکھتے ہیں اور انتباہ ان کو اپنی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔
इसमें आज़म का रूहानी दम करवाया, कर्ज उतर गया, कमर दर्द ख़त्म। मोहतरम सैयद हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपके अहलो अयाल तस्बीह खाना को सदा शादो आबाद रखे। मेरी कमर और पसलियों में बहुत दर्द था। सारी सारी रात दिन रात से तड़पते गुजर जाती। रात को तो ये आलम होता कि मुझे करवट भी ना ली जाती। 2019 दिसंबर में रूहानी दम में शरीक हुई। खुदा के करम से इसमें आज़म के दम से मेरी दर्द तकलीफ़ गायब हो गई, जैसे कभी था ही नहीं। दम करवा कर जब मैं तस्बीह खाना में वापस आई तो मेरा जिस्म इस कदर हल्का था कि कंधों पर से सारा बोझ हट गया था और दिल दिमाग का जिस्म को इतना सुकून महसूस हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसके साथ साथ मुझे रूहानी फ़ायदे ये हुआ कि मेरा कर्ज उतर गया। नमाज़ पढ़ते पढ़ते अक्सर मुझे एक सफ़ेदी रोशनी नज़र आती, जो कभी मेरे कमरे के एक कोने से नज़र आती और कभी मेरी तस्बीह के दानों से निकल कर मेरी दिल की तरफ आती। मैं रात को रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के तस्बीह और दरमियान में 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ती हूँ। एक रोज़ ख्वाब में मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान पर अल्लाह के नूर का तख़्त है। इसके सामने वाले 2 पाए नज़र आ रहे हैं। तख़्त से सुनहरी रोशनी नज़र आ रही है और इस रोशनी से आसमान पर नूर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु या रज़्ज़ाक़ को लिखा हुआ था। इसको देखकर वो खुश हो रही थी और जब से मैंने तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर दी है, अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं से मेरा कर्ज भी काफ़ी उतर चुका है। ये सब तस्बीह खाना में आने के इसमें आज़म के दम से मिला है। 2 जनवरी 2022 बरोज़ एतवार नमाज फ़जर के बाद तस्बीह खाना लाहौर में शफ़ाइया दुआ और इसके बाद इसमें आज़म का रूहानी दम होगा। इसमें आज़म के दम के फ़ौरी बाद हल्का कशफ नजूब दर्स मुराकबा और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शोबों की खिदमत करने वालों का मुज़ाकरा होगा। इसमें आज़म के रूहानी दम में शिरकत करने आने वाले मर्द हज़रात ऊँची आवाज़ में और ख़वातीन हल्की आवाज़ में पूरे कलमे तैयबा का विर्द करेंगी। इससे इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। तस्बीह खाना में होने वाले इसमें आज़म के रूहानी दम में बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब शिरकत कर सकते हैं। ख़वातीन हर हाल में शामिल हो सकती हैं। पहले वक़्त लेने की ज़रूरत नहीं, इजाज़त आम है। 7, 14 या 21 इसमें आज़म की रूहानी दम में लाज़मन शिरकत करें। अगर ज़िंदगी का मामूल बना लें तो सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ, बीमारियाँ, घरेलू उलझने, कारोबारी मसाइल का 100% हल है। इसमें आज़म का रूहानी दम कराया फ़ायदा हुआ ज़रूर लिखिए। लाखों का फ़ायदा आपके लिए सदका जारिया है। जो जादू करती थी वो मर गई, जो करवाती थी वो पागल हो गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसा से आपके मज़ामीन पढ़ रहा हूँ। आपके तिब्बी रूहानी किताबें ज़ेरे मुतालिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नफ़ा हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। एक तजर्बा या कहारों पर लिख रहा हूँ। अक्सर मेरे पास जादू जिन्नात के मरीज़ आते हैं। मैं इनको कसरत से या कहारों पढ़ने का बताता हूँ। मेरा एक जानने वाला था, इसके बच्चे अक्सर बीमार रहते थे। कभी किसी को नुकसान हो जाता, कभी कोई नुकसान हो जाता, हर वक्त तंग रहता। मैंने इसे ये लफ्ज़ पढ़ने को दिया। इसको कहा खुला पढ़ता रहे और सांस रोक कर पढ़ना। वो बंदा खूब सताया हुआ था। इसने पढ़ना शुरू किया। पहले तो जो जादू करवाती थी वो मर गई और जो लेकर आती थी वो पागल हो गई। रसोलियों का नुस्खा। मैंने आपकी किताब से रसोलियों का नुस्खा बनाया था। किताब का नाम था मुझे शिफा कैसे मिली और ये किताब मैंने दफ्तर महाना अबकरी से बज़रिया पार्सल मंगवाई थी। इसमें यह नुस्खा था: हुल, शाफ़ी, सौंफ, मलठी, हल्दी, सालम, रियून, खताई तमाम 1 तोला, सबको बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें। आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। माशी मसाइल हल होंगे। दुकान बिक गई। एक वाक़या लिखता हूँ। मैं एक बार सख्त परेशान था। दुकान नहीं फ़रोख्त हो रही थी। मैंने सारा दिन खुला ये वजीफ़ा पढ़ा। आप यकीन जानिए सिर्फ एक रात के अंदर अंदर एक आदमी ने फ़ोन पर सौदा कर दिया। वजीफ़ा ये था: या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम। फिर मैंने आपको एक मरतबा ख़त लिखा। आपने 2 अनमोल ख़जाना पढ़ने के लिए कहा था। ये पढ़ना शुरू किया कि मेरे मसाइल अल्लाह ने हल कर दिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरे माशी मसाइल बहुत ज़्यादा थे। मैंने सूरत कौसर पढ़ना शुरू की। अब अल्लाह का शुक्र है पैसे आए और जेब में रहते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत होती है। काम भी पहले की निस्बत अच्छा है। आपके बताए हुए वज़ाइफ खुद भी करता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। यरकान के लिए इंतहाई कारआमद नुस्खा। आपकी किताब से एक नुस्खा जो मैं कसरत से तैयार करता हूँ, कभी ख़ता नहीं गया। मैं काफ़ी लोगों को दे चुका हूँ। मखलूक को बहुत फ़वाइद होते हैं। नुस्खा: रियून, चीनी, मीठा सोडा, सूंड, हम वज़न, सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी के साथ लें। यरकान के लिए कारआमद चीज़ है। मैदे के अमराज के लिए मीठा सोडा 1 छटाक, सत्तू पुदीना 1 तोला। ये दवाई मैदा के जुमला अमराज में इस्तेमाल करवाई, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लकोरिया के लिए सुपारी बारीक पीस कर कपड़ा छान कर थोड़ी सी चीनी मिला लें और सुबह शाम 1 चम्मच चाय वाले हमरा पानी के 1 हफ्ते के अंदर ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा। ज़रश के टोटके ने मेरी ज़िंदगी आसान बना दी।
मोहरों के दर्द के लिए मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी रिसाला में ज़रश का टोटका पढ़ा और इसको इस तरह इस्तेमाल किया। ज़रश 1 किलो 1 चटांक की पुड़िया बना लें। एक पुड़िया रोज़ाना खाली पेट असर के वक़्त 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल की। मुझे हर वक़्त मोहरों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से सीधा चलना उठने बैठने में सख्त दुश्वारी पेश आती थी। 4 माह हो गए हैं, मुझे तकलीफ़ से मुकम्मल निजात मिल गई है। ऐसा मालूम होता है जैसे मुझे ये तकलीफ़ थी ही नहीं। नजायज़ मुकदमा ख़त्म, कज़न घर आ गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। या कहारों का अमल नाजायज़ मुकदमे के लिए ज़बरदस्त पाया। हमारी पुप्पी का एक बेटा कत्ल के नाजायज़ मुकदमे में फंस गया था। इनको या कहारों पढ़ने के लिए कहा, बहुत मुश्किल थी। मकतूल के वर्सा इसी को मुलव्वस करने पर बासित थे, मगर अल्लाह ने करम किया और इस वजीफ़े की बरकत से वो चंद दिन में घर आ गया। ना पर्चा हुआ ना केस बना, अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र में आसानी, सूरत क्रैश सफ़र से पहले 21 बार पढ़ लेने से बहुत ही मुफीद पाया। जेहलम से कराची तक के सफ़र में रेल पर सवार होकर सफ़र की दुआ के बाद 21 बार सूरत कुरैश पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में हर तरह की सहूलत और आसानी पाई। कराची उतरकर घर तक का सफ़र भी नहायत उम्दा सवारी में करने का अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर दिया और हम बासहूलत अपने मकाम तक पहुँच गए। यरकान के लिए रूहानी इलाज, यरकान जैसा भी हो और जिस कदर शदीद हो, इसके लिए एक अमल बड़ा ज़बरदस्त है। जिसको भी शदीद मर्ज़ हो, अल्लाह ताला ने शिफा दी है। अमल ये है, दरूद इब्राहिम 3 बार, सूरत अल-बनैता 7 बार, फिर दरूद इब्राहिम 3 बार पानी पर दम करके दे और मरीज से 3 दिन 7 दिन 9 दिन पिए और पानी पीने से पहले कुछ सदका भी दे दे। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएंगे। बस रुई भिगोए, तेल लगाया और खारिश ख़त्म। तारा मीरा का तेल बदन की खारिश, खुसूसन पोशीदा जगहों पर निकलने वाले दानों में बहुत लाजवाब है। पोशीदा जगहों पर दाना बन जाना एक मसला है। बंदा हर वक्त तकलीफ़ में मुब्तला रहता है। मेरे अपने साथी का एक ऐसा मतला था, दानों में पी पड़ जाती थी, हत्ता के कपड़े भी इसके ख़राब हो जाते थे। नमाज वगैरह का बड़ा मसला था। वालिद साहब ने फरमाया कि ख़ारिश के लिए मज़कूर तेल बड़ा लाजवाब है। बस मैंने रुई भिगोई और मतलूबा जगह पर दिन में 4 से 5 बार लगाया। दाने वहीं सुरख हुए, फिर सूख गए। जब भी आइंदा कभी ऐसा मसला होता है, यही और इलाज दोहरा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून रहता है। बिल्कुल आसान हल है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से ज़लज़ला की तबाही से बचा लिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको और आपकी औलाद और नस्लों को दायम अपने ईमान में रखे। एक गुज़रा वक़्त कलम बंद कर रहा हूँ, एक समंदरी ज़लज़ला आया था। इन दिनों खैबर पख्तूनख्वा में ये अफवाहें कई दिनों के बाद फैली कि ज़बरदस्त ज़लज़ला पाकिस्तान पर भी आ रहा है। इन दिनों में 90 मील दूर लिखी मरवत में था। रात को सब लोग घर से बाहर सड़क पर कलमा पढ़ रहे थे कि मैं मस्जिद में इस्तिग़फ़ार कर रहे थे। मैं अपने गाँव फ़ोन किया तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। वहाँ मस्जिद के साथ दुकानदार हैं कि यहाँ बहुत हालात ठीक हैं, आप मस्जिद के लाउड स्पीकर पर ज़रूर ऐलान कर दें कि ज़लज़ले का इम्कान है, लिहाजा इस्तिग़फ़ार के लिए मस्जिद में जमा हो जाएं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। उन्होंने ऐलान कर दिया। रात 11 बजे सब भागे और भागकर मस्जिद में ऐसे बंदे भी आ गए जो आज तक मस्जिद नहीं आए थे। खूब रोए ना ज़लज़ला आया। दूसरे दिन घर पहुँचा तो लोग कह रहे थे कि इसको छोड़ना नहीं, इसने कहा था और ज़लज़ला नहीं आया। लेकिन नज़दीकी शहर में मामला कुछ और था। वहाँ ज़लज़ला भी आया और इमारतों को नुकसान भी पहुँचा। हजामा से घुटने ब्लड प्रेशर का मसला हल। मुझे घुटने और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी। अरसा से इस बीमारी में मुब्तला था, लेकिन किसी ने हजामा करवाया जो आजकल के जदीद तरीका भी माना जाता है। मेरे घुटने ठीक और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। हेपेटाइटिस बी सी, गले का बढ़ जाना, मैदे में दर्द के लिए मेरा नुस्खा। हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी से आपकी बैत का शर्फ़ मिला। तस्बीह खाना में दर्स सुना, दूसरी जमेरात को बैत हुआ। रिसर्च करने का शौक़ शुरू से ही था। आपकी सोहबत में चंद दिन चंद दर्स सुनने के बाद ऐसा लगा कि आकर कुछ छिपाऊंगा, दिल पर बोझ रहेगा। दिल का बोझ हल्का होता अगर किसी को कुछ बताता। कोशिश करता कि अमाल ही लोगों को बताऊँ। ये अमाल आपकी रिसाला से हासिल करता हूँ और आपकी किताबों से भी बताता हूँ। अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि अपने आप को कोशिश करता हूँ बावजूद रखूँ और जिक्र अस्कार करता रहूँ। हेपेटाइटिस बी सी, गले का बढ़ जाना, मैदे में दर्द के लिए मेरा अपना आज़मूदा नुस्खा होम्योपैथिक का है। न्यूट्रम सुल्फा 200 ताकत, रोज़ाना सुबह नहार मुँह 10 कतरे थोड़े थोड़े पानी में मिलाकर पिएं।
तीनों अद्वियात के नाम लिखे हैं। तीनों अद्वियात के 5-5 कतरे एक पानी में मिलाकर खाने के बाद सुबह दोपहर शाम दें, अल्लाह ताला शिफा देंगे। अगर मज़ीद इजाफा करना चाहें तो मई 2012 के अबकरी में जिगर के अमराज का एक फार्मूला लिखा हुआ था जो चंद हर्बल अद्वियात के अर्कियात पर मुश्तमिल था, वो भी इस्तेमाल करें। वो नुस्खा ये है: हुलशाफी, गुलमंडी, गुल सुरख, चराहता, सना मक्की, सौंफ, धनिया 1 तोला, संदल सुरख 4 तोला, पनीर ढोडी आधा किलो, बर्ग, नीम, गौज़बान, गुल, नीलोफर, अनाब, थरपेला, अदरक, लसूड़े, आलू बुखारा, बनफशा, शातरा, इमली 1-1 तोला लेना है। तमाम चीज़ें 20 किलो पानी में रात को भिगोकर रखें, सुबह हल्की आंच पर पकाएं। 12 किलो पानी रह जाए तो उतार लें और छानकर महफूज कर लें। 40 ग्राम सोडियम बेनोवेट डालकर दें ताकि ख़राब ना हो। 1-1 कप सुबह शाम मरीज को पिलाएं। इन साहब ने इस नुस्खा की तारीफ में जो अल्फाज अब की रिसाला मई 2012 में लिखे हैं वो भी यहाँ लिख रहा हूँ ताकि इस्तेमाल करने वालों को इसके फ़वाइद का इल्म हो। यरकान के हज़ारों मरीज़ आखिरी स्टेज पर पहुँचे हुए थे। किसी भी किस्म का मर्ज़ हो, बस 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये नुस्खा मेरे नाना जी मंशा इलाही बख्श से मिला। 85 मरीज़ों को दिया। वो मरीज़ मौजूद हैं। खुद मौलवी गुलाम सरवर साहब, इनके 5 बेटे हैं, नौकरियां छोड़ दी और यही नुस्खा चलाते हैं। इनके पास हज़ारों मरीज़ शफायाब हो रहे हैं और होते हैं। एक मरीज़ आया, बिल्कुल काला रंग, ऐसे बदन में खून नहीं, 4 माह इस्तेमाल किया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये मरीज़ आखिरी स्टेज का था। लकोरिया के लिए इंतहाई मजरब। औरतों के लिए लकोरिया के लिए एक और नुस्खा जो कि नहायत ही मुजरब है, जिसमें काफ़ी अच्छे मशादात है, वो ये है कि सीपिया ओवी टेस्टा 30-30 5-5 कतरे दोनों मिलाकर थोड़े पानी में खाने से पहले दिन में 3 मरतबा। भरपूर जवानी और खुशगवार बढ़ापे का नुस्खा। अबकरी 2014 के रसाले में आपका तहकीकी सफ़ा अम्मा जी ने दिया। फिर भरपूर जवानी और खुशगवार बढ़ापे का नुस्खा बहुत ही अच्छा है। नुस्खा इस्तेमाल करते वक्त अम्मा के लिए दुआएं ही ज़बान से निकलती हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से याददाश्त, बेहतरीन पट्ठों में नई कुव्वत और जान आ जाती है। ये नुस्खा यहाँ लिख रहा हूँ ताकि मौसम सरमा में लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। पुरानी लकोरा या महरों का मसला, डस्क प्रॉब्लम, असाबी खिंचाव इस नुस्खे के सामने ऐसे हैं जैसे आटे में से बाल निकल जाता। ऐसे ख़वातीन जिनमें बेऔलादी के मसाइल हों, अपनी बेऔलादी के लिए मुख्तलिफ अदवायात इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इनको फ़ायदा ना होता हो तो इन्हें ये अम्मा का टोटका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कमज़ोरी के शिकार मर्द और जरासीम की कमी की शिकार ज़रूर आजमाएं। हुलशाफी साबुत मूंग 1 किलो, बादाम की गिरी 1 पाव पिसी हुई, चीनी लेकिन बेहतर है देसी शक्कर इस्तेमाल की जाए, वरना चीनी बेहतर है जिसमें केमिकल इस्तेमाल ना हो। 1 किलो पिस्ता, 1 शटांग सौंफ, आधा पाव नारियल खोपरा, 1 पाव फूल मखाने, आधा पाव छोटी इलायची, 1 तोला चारों बूंदे, 1 पाव नशास्ता, 1 पाव इसबगोल का छिलका, आधा पाव देसी घी 1.5 किलो। बनाने का तरीका: साबुत मूंग को भून लें, बाद में इसमें आटा बना लें, देसी घी में चारों बूंदे ब्राउन कर लें और कूटें। फिर फूल मखाने भी देसी घी में ब्राउन करें और कूटें। बादाम घी भी में ब्राउन करके कूट लें। सौंफ को भी ब्राउन करके इसका आटा बना लें, यानी सब देसी घी में। नशास्ता को भी घी में ब्राउन करें और बाकी पिस्ता और छोटी इलायची को ब्राउन के बगैर हल्का कूट लें। आखिर में तमाम अज्जा को मिलाकर घी में भून लें और पिसी हुई चीनी मिला दें, खूब मिक्स करें। इसके बाद नारियल खोपरा और इसबगोल का छिलका मिला दें। तमाम अशिया मिलाने के बाद एक बर्तन खुले में डालकर ठंडा करें और टुकड़ों में काट लें। वाज़ेह रहे आखिर में तमाम अज्जा को जब भूनें तो बिल्कुल हल्की आंच हो, ज़्यादा देर तक इसे भूनने से जल जाए और ना अज्जा भी खूब महफूज रहें। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। शदीद खांसी में यूरोपीय अवाम कौन सा टोटका इस्तेमाल करती हैं? जाड़े के मौसम में पान वालों की दुकान पर लौंग, इलायची, पेपरमिंट, चोना, तंबाकू के मुकाबले में मलट्ठी का पान की आवाज़ें ज़्यादा सुनने में आती हैं। खुश्क और सर्द हवाओं की वजह से गले में खराश और फिर खांसी का एक मौसर इलाज ये भी है कि पान में मलट्ठी का सफ़ूफ डालकर इसके बैग निकल ली जाए। ये एक आज़मूदा रवायती इलाज है। मलट्ठी और इसका सत रब्बुलसूस मुख्तलिफ तकालीफ के लिए बाकसरत इस्तेमाल होता है। ये एक पौधे की जड़ी होती है जिससे ज़मीन में काफ़ी गहरा चली जाती है। इन जड़ों को बरसात के ख़त्म होने पर निकाला जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अलावा फैसलाबाद में भी इसकी काश्त होने लगी है। मलट्ठी के मुफीद असरात: इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर खांसी के लिए बहुत मुफीद साबित है। ये बलगम वगैरह को एतदाल के साथ पतला करता है। प्यास और मैदे की सोजिश के लिए मुफीद होती है। अज़लात पट्ठे इससे क़वी होते हैं। हलक की खुश्की दूर करती है।
اور बलगम खारिज करके सीने को साफ कर देती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में खांसी हलक वगैरह की तकालीफ के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। सख्त खांसी की सूरत में यूरोप में इसे अलसी के साथ जोश देकर बतौर चाय पीते हैं। इससे गले हलक की दुखन खराश और खांसी को बहुत आराम होता है। मगरबी मुल्कों के नबाती मालिजीन इसे आंतों और पेशाब की नालियों से नज़लादी मादे अखराज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मगरबी मालिजीन नबातात में गैर मुल्की एक मालिज का ये नुस्खा खांसी की तकलीफ के लिए बहुत मकबूल है। अलसी के बीज 12 ग्राम, मुलट्ठी 25 ग्राम, उम्दा किशमिश 125 ग्राम, ताज़ा पानी 2 लीटर पानी में तमाम अज्जा डालकर धीमी आंच पर ढककर इतना पकाएं कि पानी निस्फ रह जाए। अब इसमें आधा किलो पानी अच्छी किस्म का गुड़ शामिल करके छानकर क़वाम दुरुस्त कर लें। सोते वक्त एक प्याली गर्म पानी में चाय के 4 चम्मच ये शरबत घोल कर इसमें आधे नींबू का रस शामिल करके धीरे धीरे पीने से खांसी की तकलीफ से निजात मिल जाती है। जब भी खांसी सताए इसे पीना मुफीद साबित होता है। मुलट्ठी जड़ खाएं, मैदे और अल्सर की कब्ज़ ख़त्म और जल्द चमकदार। जिल्द की रंगत निखारने, बाल स्याह मुलायम बनाएं। मुलट्ठी को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से जिस्मानी क़ुव्वतें बहाल होती हैं। इसको प्यास की शिद्दत, खांसी और सांस लेने की तकलीफ दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जिल्द की रंगत निखर जाती है, बेनाई में इजाफा होता है, बाल स्याह मुलायम और चमकदार होते हैं। बलगम और खून की अक्सर बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। प्यास कैम मतली को रोकती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल उम्र में इजाफे का सबब बनता है। एलोपैथिक अदवायात में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैदे के अमराज और दर्द के लिए इंतहाई उम्दा चीज़ है। मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है। खुश्क जड़ के टुकड़े रात को पानी में भिगोएं और सुबह चावलों के बीज के पिच के साथ खाना मैदे के अल्सर को ख़त्म करता है। गले की खराश के लिए मुलट्ठी का छोटा सा टुकड़ा चबाने या चूसने से गले को आराम मिलता है। हलक से मुतल्लिक तमाम बीमारियों के लिए मुलट्ठी का इस्तेमाल नहायत मुफीद है। नज़र की खराबी और पट्ठों का दर्द ख़त्म। मुलट्ठी कब्ज़ के लिए नहायत मौसर है। इसका सफ़ूफ पानी और चीनी के साथ लेना जलाब का काम देता है। मुलट्ठी दूर की नज़र में ख़राबी की सूरत में नहायत कारआमद है। पट्ठों का दर्द दूर करती है। मुलट्ठी को जड़ों को रात भर पानी में भिगो कर रखने के बाद सुबह इसका पानी पीना जोड़ों के पुराने दर्द को दूर करता है। गंजपन दूर। मुलट्ठी गंजापन दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। मुलट्ठी के टुकड़े पीस कर दूध और 1 चुटकी ज़ाफ़रान मिलाकर पेस्ट बना लें और रात को सोते वक्त सर के गंजे हिस्से में लगा लेने से बाल आना शुरू हो जाते हैं। आज़मूदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल तबादला अपने शहर में हो गया। तबादला अपने शहर में हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 15 साल से एक खाद कंपनी में मुलाजमत कर रहा हूँ और मुझे रोज़ाना 25 किलोमीटर का सफ़र करके ऑफिस जाना पड़ता था। मेरा तबादला मेरे शहर के किसी ब्रांच में हो जाए जो कि मेरे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर पर फासले पर था। इसके लिए बहुत सी कोशिशें की लेकिन तबादला ना हुआ। मेरी कंपनी के एक मुलाजिम ने मुझसे कहा कि आप आज़मूदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल किताबचा में दिए गए वज़ाइफ करना शुरू करें और फिर कमाल देखो। मैंने इसकी बात पर अमल करते हुए वज़ाइफ शुरू किए और तकरीबन 200 के करीब किताबचा तकसीम करना शुरू किया। तकरीबन 1.5 माह के अंदर अंदर ही मेरा तबादला मेरे शहर की एजेंसी में हो गया। बेटी ससुराल में बाइज़्ज़त रह रही है। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक रिश्तेदार खतून की बेटी जो पिछले 3 माह से घर आकर बैठी थी, इसके बारे में पूछा तो इसने बताया ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। आज 3 माह हो गए हैं, कोई खबर तक नहीं लेने आया। इस लड़की को आज़मूदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल किताबचा दिया और कसरत से पढ़ने की हदायत की और इसकी माँ को ये हदायत की कि हर जुमेरात जितनी तौफीक हो ये किताबचा तकसीम करना है। उन्होंने मेरी बात पर अमल किया। तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर शोहर का फ़ोन आ गया और इसने अपनी बीवी से वादा किया कि वो 2 दिन बाद लेने आ रहा है और फिर ऐसा ही हुआ। वो लड़की अपने घर में खुश है और ससुराल में बाइज़्ज़त रह रही है।